हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है एंथैल्पी। इस टॉपिक में हम देखेंगे एंथैल्पी का टर्म डिटेल में और कुछ जो होते हैं डेरिवेशंस। फ्रीक्वेंटली दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम, सो लेट्स सी this stuff in detail. See, in the previous lecture I told you about the term enthalpy. So, enthalpy of the system is defined as the sum of internal energy and pressure, volume, type of energy. So, enthalpy is defined as the total heat content of the system. Total heat content of the system, including pressure, volume, type of energy. मैंने कहा था आपसे, इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक जो वर्क होता है वो हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम का ही होगा. इट्स अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. सो द टर्म एंथैल्पी कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला H is equal to U plus PV, where H is nothing but enthalpy, U is internal energy, P is pressure, and V is volume. All these terms, pressure, volume, then internal energy, all these terms are state functions. That's why, and enthalpy is also a state function. You know, H is nothing but H is equal to U plus PV. Enthalpy is equal to internal energy plus pressure, volume, type of energy. So, enthalpy is defined as it is the sum of internal energy and pressure, volume, type of energy, or you can say pressure, volume, type of work as well. So it is the total heat contained of the system. It is state function. It is state function and extensive property. Means its value will depends only on initial and final state of a system. So it's a state function as well as extensive property. मतलब its value will depend on the amount of matter present in the system. That's why it's an example of extensive property. Usually आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, prove that delta H is equal to delta U plus P delta V. ये आपको अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, डेल्टा H is equal to delta U plus P delta V. देखिए, absolute value of enthalpy we can find out, but the change in enthalpy we can find out. So delta H is equal to delta U plus P delta V. देखो, let's prove it. We know that H is equal to U plus PV. Yes. Let H1, U1, P1 and V1 be the enthalpy
internal energy, pressure and volume of initial state. Therefore, H1 is equal to U1 plus P1 and V1. This is nothing but equation number 1. We have to say it's for initial state only. Similarly, H2, U2, P2 and V2 be the एक सेकेंड, H2, U2, P2 and V2 be the enthalpy of final state of सिस्टम. तो इसके लिए यही जो इक्वेशन में लिखा था ये बन जाएगा H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 एंड V2. ये है इक्वेशन नंबर 2. subtracting equation 1 from 2, तो क्या मिलेगा हमें? यस, H2 माइनस H1. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमें करने का है माइनस, तो H2 माइनस H1. यस, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 that we can write. H2 माइनस H1 यहां का जो टर्म है ये हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H. इट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस यस P2 V2 माइनस P1 V1. ये जो टर्म है डेल्टा मीन्स होता है डिफरेंस. सो डिफरेंस इन द एंथैल्पी, ये है डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी P2 V2 माइनस P1 V1. अगर हमने ऐसा एज्यूम किया, इसमें एज्यूमिंग P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P. समझिए जो भी हम लोग यहां पे कर रहे हैं रिएक्शंस, वो अगर होते हैं कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो यहां पे P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा. एंड दैट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P. लेट we have to assume it is equal to P. So delta H is equal to delta U plus PV2 minus PV1. Therefore delta U in bracket PV2 minus V1. Delta U and यहाँ पे आएगा P delta V. So this is nothing but the term delta H. So enthalpy change is equal to change in the internal energy plus pressure and change in volume. I mean the product of P and delta V, change in volume or pressure का product. So this equation will be asked for 2 marks. They will ask it for 2 marks. तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा. आपको पता होगा हमने देखा था फर्स्ट लॉ और उसका जो फॉर्म था दैट इज यस डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. यस, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. देखो, अगर आप देखोगे यहां पे प्रॉपरली, तो अगर हमने यहां पे इस Q को एज्यूम किया, Q इज नथिंग बट सपोज इफ इट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो मैं इसे कहूंगा एज QP. आई मीन यस, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. तो W, यस, यहां पे है W. और आपको पता है, और एक बात देखो,
ये जो है यहाँ पे ये है डेल्टा यू, यू नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूपी प्लस डब्ल्यू। हम एक काम करेंगे यहाँ पे ये जो लिखा है डब्ल्यू, हम इस डब्ल्यू को लेकर आएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा यू, यस ये डब्ल्यू क्या होता है, इधर आके हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूपी, राइट, यस। तो अभी ये क्यूपी क्या है, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। आपको पता है डब्ल्यू, एज्यूमिंग, देखिए अगर हमने ऐसा एज्यूम किया कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P, अगर हमने यहां पे किया तो हम यहां पे W के लिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, यस, एक्सपांशन ऑफ द गैस अगेंस्ट कांस्टेंट अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या आएगा यहां पे, तो डेल्टा U इज इक्वल टू, आपको पता है W के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यस, बोलिए क्या फॉर्मूला का उसके लिए, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, लेकिन यहाँ पे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P है, सो वी हैव टू राइट हियर व्हाट, W के लिए क्या यहाँ पे मिलेगा, यू नो दैट फॉर W वी हैव टू राइट हियर माइनस P डेल्टा V एंड इज इक्वल टू QP। तो देखिए क्या मिलता है आपको, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू QP, यस। अभी ये जो लिखा है मैंने, ओके, इफ यू सी दिस इक्वेशन एंड द फर्स्ट वन, पहले मैं इसे करता हूं रिवर्सिबल, मैं लिखता हूं उसको, आई मीन नॉट रिवर्सिबल इन द, तो क्यूबी को मैं इधर लेकर आऊंगा, तो यहां पे ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी देखिए इसको भी जरा प्रॉपरली मैं कहूंगा, समझो इसको एज इक्वेशन, समझो है ये है ए और ये है इक्वेशन बी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्रॉपरली कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे डेल्टा यू है, यहाँ पे डेल्टा यू है, यहाँ पे डेल्टा वी है, यहाँ पे पी डेल्टा वी है। तो क्यूपी क्या होता है, इट्स अ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए देखो आगे इक्वेशन ए और बी से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यहां पे यस डेल्टा एच इज इक्वल टू ही होता है क्यूपी। क्यूपी मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। सो इसके आगे जब भी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा द एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको समझना है वो जो वैल्यू यहां पे होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। ये पूरा आप अच्छे से नोट डाउन करके लीजिए आपके नोटबुक में, ये हमारे नोट से मैंने कहा है आपको, तो उसको आपको प्रॉपरली लिखने का है। रिमेंबर यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा, डेल्टा एच का वैल्यू अगर होता है निगेटिव, देन द रिएक्शन इज exothermic reaction. If the value of delta H is positive, then the reaction will be endothermic reaction. So delta H value will tell you whether the reaction is exothermic reaction or it's an endothermic reaction. Remember, delta H value we can find out. Absolute value of H we cannot find out. H is nothing but enthalpy, which is a state function and as well as extensive property. Please note down all this point so that we can continue further. तो लिख लिया आप लोगों ने, देखिए अभी इसके आगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये है हमारा फॉर्मूला। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्यूपी इज नथिंग बट डेल्टा एच। डेल्टा एच को हम कह सकते हैं यस एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। सो रिमेंबर, जैसे मैंने प्रूव किया था, आपको बताया था
delta H is also known as QP, that is enthalpy change at constant pressure. इसके आगे ये डेल्टा एच का टर्म, इसी के लिए हम यहां पे लिखेंगे ये सब एंथैल्पी चेंज यस एट कांस्टेंट प्रेशर. चलो अगर हम बात करते हैं ये इक्वेशन जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, अगर हम इसे कंसीडर करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसका क्या होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. देखिए आपको पता है अगर वॉल्यूम है कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या हुआ? एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी का वैल्यू हो जाएगा 0, और इस इक्वेशन में अगर डेल्टा वी का वैल्यू जब भी हो जाएगा 0 तब क्या होगा बताएं? देन एट दैट टाइम डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. सो दिस होल टर्म पी डेल्टा वी इट इज इक्वल टू 0. तो ऐसे में डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू. इसीलिए डेल्टा यू को हम कह सकते हैं Q, that is amount of heat absorbed by the system at constant volume. इसको हम ये भी कह सकते हैं. और you can better say this term as yes, क्या है इधर? Yes, it is also known as enthalpy change. Enthalpy change at कांस्टेंट वॉल्यूम. तो डेल्टा यू का मतलब समझ गए आप, इसको हम एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टर्म पूरा क्या हो गया है हमारा इधर, ये इधर हो जाएगा टर्म ए 0. क्या आप मुझे बता पाएंगे कि और ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू होगा? यस, क्या टेल मी, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा? पहले तो कंडीशन में बताया आपको कि द डेल्टा वी का वैल्यू होना चाहिए 0, और ये कब होता है? व्हेन द प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0. सो रिमेंबर, जब होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, नंबर 1 डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू का होगा. नंबर 1 जब प्रोसेस होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा वी का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0. सेकेंड थिंग कब होगा? जब हम एज्यूम करेंगे, देखो कि P इज इक्वल टू 0. आई मीन इफ इट्स एन एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सपांशन, so that P as well as P external is equal to 0. तो ऐसे भी केस में यहां पे क्या आ सकता है? डेल्टा H is equal to डेल्टा U, ये टर्म हम यहां पे लिख सकते हैं. So these in these two conditions, remember कि क्या हो जाएगा? देखो ये अगर वैल्यू वापस से अगर P का वैल्यू अगर 0 होता है तो भी डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा H is equal to डेल्टा U यहां पे आएगा. So note down all these things. अब इसके आगे they may also ask you prove that delta H is equal to delta U plus delta N into R into T. ये भी हमें कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है क्वेश्चन. सो इसको हम प्रूव करेंगे. यस, तो वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लिखने का इसको, वी नो दैट, यस, अभी हमने प्रूव किया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस यस पी डेल्टा वी. इसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1. यस,
assuming the gas is ideal gas, then we have ideal gas equation. आपको पता होगा PV is equal to N into R into T. That is nothing but ideal gas equation जो प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में. PV is equal to N into R into T. This is nothing but ideal gas equation. So here let P1 V1 P1 V1 then N1 and T1 be the pressure, volume, number of moles and temperature of initial state, then we can write, yes, P1 V1 is equal to N1 R T1. This is equation number 2, suppose. Similarly, P2 V2 N2 and T2 be the pressure, volume, number of moles and temperature of final state of system. तो हमें मिलेगा P2 V2 is equal to N2 R T2, इक्वेशन नंबर 3. देखो अगर हम यहां पे देखेंगे प्रॉपर्ली तो अगर प्रेशर होता है, आई मीन P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, तो इस केस में क्या होगा? मतलब अगर यहां पे अगर हमको निकालना है यस डेल्टा P डेल्टा V टर्म, या फिर अगर हमको करने का है यस सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3, तो क्या आएगा? P2 V2 माइनस P1 V1 is equal to N2 R T2 and N1 R T1. So as I said to you, P2 is equal to P1, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा P. So इस P in bracket V2 माइनस V1. ठीक है, मैं इसे और एक स्टेप में ऐड करके लिखता हूं, तो इधर हो जाएगा P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, क्योंकि यहां पे मैंने P1 इज इक्वल टू P को एज्यूम किया है, दैट इज इक्वल टू P. इस केस में P एक्सटर्नल इज आल्सो इक्वल टू P. तो यहां पे और एक चीज, टेम्परेचर भी यहां पे हमें सेम लेना होगा, तो यहां पे T1 इक्वल टू T आ जाएगा. T1 is equal to T2 is equal to T. So here I have to write N2 minus N1. तो R yes T यहां पे आएगा. इसको मैं लिखता हूं इधर assuming P1 is equal to P2 is equal to T and टेम्परेचर भी कांस्टेंट है यहाँ पे. T1 is equal to T2 is equal to T. अगर हमने यहाँ पे अज्यूम किया, पहले तो ये पता है, मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. सो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P एंड T1 इज इक्वल टू T2. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर विल रिमेन द सेम. तो ऐसे में यहां पे ये पता है आपको V2 माइनस V1 हो जाएगा डेल्टा V, N2 माइनस N1 हो जाएगा डेल्टा N, एंड RT को मैं ऐसे लिखूंगा.
तो मुझे मिल गया P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा nRT। अगर हम यही वैल्यू P डेल्टा V का पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें मिलेगा क्या? यस, फ्रॉम इक्वेशन 1, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N इंटू R इंटू T। So delta H is equal to delta U plus delta nRT। ये हमने लिखा है इक्वेशन 1 से, मतलब P डेल्टा V is equal to आता है डेल्टा nRT। लेकिन यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इज द इक्वेशन वी हैव रिटन, इट्स ओनली फॉर द गैसियस स्टेट। यहां पे जो डेल्टा n का वैल्यू है, डेल्टा n का वैल्यू होता है यहां पे चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ओनली फॉर द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स। सो दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसेस। तो इसके ऊपर भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, हम वो सॉल्व करेंगे। यस, आप उसको पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा इन सब बातों को। ये भी आता है डेरिवेशन 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, इस तरह के आएंगे, ये सब हम देखेंगे चैप्टर के बाद, जब हम पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स साथ लेंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो भी टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। लेक्चर के दौरान आपको वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करने के बाद ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये यहाँ पे जो लिखा है इसको प्रॉपरली लिख लीजिए। तो लिख लिया आपने। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N इंटू R इंटू T। डेल्टा H आपको मालूम हो गया अभी, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा U का मतलब होता है यस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, जिसको अभी हमने लिखा था एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑल्सो। डेल्टा N ये टर्म आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहां पे डेल्टा N का मतलब जानते हो, N2 मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस N1 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा आप लोग। N2 मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, एंड N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और एक बात आपको पता है, फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। यस, if P external is equal to P, अगर हमने एज्यूम किया एक्सटर्नल प्रेशर जो कि होता है सराउंडिंग की वजह से, P मतलब होता है प्रेशर जो कि होता है सिस्टम की वजह से, मतलब जो गैस सिस्टम के अंदर है उस वजह से। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? नाउ सी हियर, W यहां पे क्या है? यस, W यहां पे है वर्क डन। तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P अगर हमने यहां पे लिखा तो पता है आपको क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ये हम यहां पे लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस अभी एग्जांपल जो मैंने लिखा था यहां पे, इसमें प्रूव किया था कि माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है? यस,
माइनस डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी। अभी हमने ये प्रीवियस एग्जाम्पल में ही प्रूव किया था। डेल्टा एन यहां पे होगा चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, आर यहां पे है मोलर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे हम लोग कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.314 joules per Kelvin per mole. Then T is absolute temperature. So W is equal to minus delta N into R into T. Delta N है change in the number of moles, R is molar gas constant and T होता है absolute temperature. Okay? तो अभी यहां पे देखो डेल्टा एन का वैल्यू के बारे में सोचेंगे। अक्सर आपको इस तरीके के रिएक्शन दिए जाएंगे और दे में आस्क यू, आपको बताना पड़ेगा कि किसने किस पे वर्क किया है। आई मीन आइदर वर्क इज परफॉर्म बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये हम यहां पे निकाल सकते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं यहां पे। देखो इफ, इसके लिए केस 1 ये है, इफ N2 is greater than N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट का वैल्यू अगर ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से, तो इस केस में डेल्टा एन का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? देन इन दैट केस डेल्टा एन का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये आर और टी तो मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव होते ही है, तो ऐसे में वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। और आपको मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में, व्हेन द वर्क डन वैल्यू इज नेगेटिव, एट दैट टाइम वी हैव टू से यस वर्क is done by the system on surrounding. So this is the first important case. If N2 is greater than N1, number of moles of gaseous products are more than number of moles of gaseous reactant. See, I will underline gaseous. Gaseous को याद रखना है आपको। तो मैं कह रहा हूं gaseous in the sense, अभी रिएक्शन में देखो जैसे कि यहां पे दिया है solid, तो we have to only consider the gaseous substances. Either they are in the reactant side or product side. अभी यहां पे देखते हैं, पहला एक केस हमारा हो गया। दूसरे केस में अगर है if N1 is greater than N2, मतलब यहाँ पे N1 ग्रेट है, तो ऐसे में डेल्टा N का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि डेल्टा N क्या होता है? N2 माइनस N1, तो ये हो जाएगा निगेटिव। सोचिए डेल्टा N का वैल्यू अगर होता है यहाँ पे, ये डेल्टा N का जो वैल्यू अगर ये हो जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा इधर? यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसे में वर्क डन W का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को होता है कंफ्यूजन कि कब हम लेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन बाय द सराउंडिंग। मैं इसके लिए आपको एक बात कहूंगा, हमने वर्क डन के दो डिराइव किए हैं एक्सप्रेशंस। याद रखिएगा दोनों एक्सप्रेशन में एक बात कॉमन है। कौन सी? दोनों भी जो होते हैं एक्सपांशन, उनमें दोनों भी जो होते हैं केसेस, इनमें होता है कंपल्सरी एक्सपांशन। एक्सपांशन जब होगा गैस का, तो हमने यहां पे देखिए W का वैल्यू निगेटिव लिया है, इसलिए दो फॉर्मूले जो हमने डिराइव किए थे, एक W मैक्स वाला और दूसरा W वाला। W मैक्स का फॉर्मूला क्या है? -2.303 nRT log to the base 10 of V2 upon V1। तो इधर भी माइनस साइन है, और दूसरा वाला जो हमने प्रूव किया था तो ये था W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। देखिए पिस्टन का डायग्राम आपको याद होगा, इन दोनों भी केस में एक्सपांशन ही हुआ है। जब भी एक्सपांशन होगा तब याद रखिएगा वहां पे क्या होगा?
यस, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इधर क्या है, W पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज्यादा है, प्रोडक्ट के यहाँ पे कम हो गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, W पॉजिटिव। जब W पॉजिटिव होगा तब वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, इधर क्या आएगा, W अगर पॉजिटिव है तो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। तीसरा कंडीशन यहां पे क्या है, इफ N1 इज इक्वल टू N2। देखिए अगर यहाँ पे N1 इज इक्वल टू N2 होता है तो डेल्टा N का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो ऐसे केस में वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो W इधर क्या आ जाएगा, 0। सो दिस विल बी द थर्ड कंडीशन दैट वी हैव टू रिमेंबर। यही कंडीशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी कुछ एग्जांपल लिखे हैं बोर्ड पे, मैंने 5 एग्जांपल्स, इनको हम सॉल्व करेंगे। In the first example, you can see 1 mole of H2 combined with 1 mole of Cl2 to produce 2 moles of HCl। देखिए ना, 1 + 1 कितने हुए, 2 moles। 2 moles रिएक्टेंट के, 2 moles प्रोडक्ट के। तो क्या आप मुझे अभी बता सकते हैं कि वर्क डन यहाँ पे किसने किया है? देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सेम है बिल्कुल, तो यहां पे N1 इज इक्वल टू है N2, तो वर्क डन का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, 0। हमारा ये थर्ड केस, क्योंकि यहां पे दोनों इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है। रिमेंबर आपको उनका फिजिकल स्टेट भी देखना होगा, गैसियस की अगर है तो हमारे लिए काम का है। दूसरे एग्जांपल में देखिए 3 मोल्स है ऑक्सीजन गैस के जो कंप्रेस होके 2 मोल्स में हो गए हैं ओजोन के, 3 मोल से 2 मोल मिले हैं हमें। सो इन दैट केस क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 इज ग्रेटर देन N2। क्या है N1? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस क्या है, रिएक्ट कितने है वो, 3। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पे, वो 2 है। तो N1 ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने रिएक्टेंट 3 है, और इससे कितने हैं, 2 है। तो N1 इज ग्रेटर देन यस N2। तो ऐसे में क्या आएगा, देन द W यहां पे आएगा पॉजिटिव, तो हम उसे क्या कहते हैं, यस वर्क इज डन बाय सराउंडिंग on system। Understood? Now in that case, different case here, twice SO2 plus 1 O2। इसके है 2 मोल्स, इसका है 1 मोल, और इसके है 2 मोल्स। 2 और 1 कितने हुए, 3 मोल। 3 मोल से हुए हैं वापस कितने मोल फॉर्म हुए हैं, 2 मोल्स। मतलब यहां पे वापस N1 का जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन N2, तो वापस इधर क्या आएगा, W इज इक्वल टू यस पॉजिटिव। वापस यहां पे लिखेंगे वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। फोर्थ केस में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट तो यहां पे बिल्कुल 0 है, लेकिन देखो प्रोडक्ट साइड में CO2 गैसियस फॉर्म होता है, तो मैं यहां पे कहूंगा N2 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि यहां पे कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, CO2 का यहां पे 1 मोल हुआ ना, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इसको हम यहां पे नहीं करेंगे कंसीडर, सिर्फ हम CO2 को कंसीडर करेंगे। तो N2 यहां पे ज्यादा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यहां पे ज्यादा है than the number of moles of gaseous reactants। तो इस केस में क्या होगा, N2 is greater than N1, so W is yes first case negative, work is done by the system।
चलिए हमारा आखिरी केस अभी बचा है, इसे खत्म करेंगे और फिर आज का लेक्चर भी खत्म करेंगे। यहाँ पे क्या है NH4NO3 जो कि है सॉलिड, इट गिव्स N2O। देखिए इसके तो 0 मोल से, मतलब अगर बात करते हैं गैसियस की तो 0 आएंगे क्योंकि ये तो यहाँ पे सॉलिड है। इसका है 1 मोल, इसके है 3 मोल्स, सॉरी इसके है 2 मोल्स। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? हो गए 3 मोल्स। सो इन दिस केस अगेन N2 is greater than N1, तो क्या होगा? W का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, एंड दैट्स व्हाई वर्क is done by the system on surrounding। ओके, आया समझ में? कुछ और एग्जाम्पल अगर बुक में दिए हैं आप उनको सॉल्व कीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क मी। आज का हमारा लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।